हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मैं एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ एंड आई ऑलवेज डू दिस। मैं ट्रैवल करती हूँ एंड मैं अपलोड नहीं करती। पुराने कितने सारे मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं जो मैंने अपलोड ही नहीं किए। होपफुली आई will upload them this time. So we went to Thailand for the umpteenth time again this April, and it was a 10-day trip. We came back in May. So Thailand kitna bhi jao, there's always something new to offer. एंड ये सब देख के मैं कभी बोर नहीं होती, स्पेशली वो 7-Eleven में वो फैंसी वाले कॉस्मेटिक्स मुझे यूज़ करना बहुत, मतलब यूज़ करने का तो बहुत मन होता है बट आई डोंट डू। बट यू नो, लड़की हूँ, कपड़े कॉस्मेटिक्स ये सब का तो शौक है ही। बट आई कन्विंस माई सेल्फ के नेचुरली इज़ बेस्ट। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लास्ट अक्टूबर भी मैं थाईलैंड गई थी एंड वी ऑलवेज हैव टू गो टू सम बीच प्लेस एंड गो बैक टू बैंकॉक। बैंकॉक इज़ लव। तो पहले हम लोग गए थे Phuket because it has beautiful views, and this time we went to another island, a little less explored island of Thailand. तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे बैंकॉक या फुकेट या पटाया कहीं पे भी आप जाओ, दिस रोटी is very famous. So we tried it. Every time there are different flavors, and even if you are vegetarian, you will have lot of options. I am all very vegetarian. So मुझे अगर बोलोगे भी कि फ़िश खा लो या अंडे खा लो as a substitute, I will not have it. So I tried that, and मैं eggs भी नहीं खाती आजकल. So this is a beautiful hotel view, and for the price that we got, it was a steal. And last October 2024 में भी जब गई थी थाईलैंड में, तो it was raining. So this time I guess April to May it also rains a bit. So these are like this fancy protein shakes we got from 7-Eleven. 7-Eleven always has new stuff to offer, whether be it food, pastry, drinks, yeah, like smoothies, or like snacks, even for veg options. So it's quite tasty. And cosmetics का तो छोड़ ही दो, लड़कियां वहाँ पे जाके पागल ही हो जाएंगी. And I still cannot believe that every outlet of 7-Eleven has different variety. And Thailand is so full of 7-Eleven. अगर आप कहीं पे भी जाओ, even if it's a remote island, you will never feel that you have gone to a place with scarcity, because all the basic amenities are there thanks to 7-Eleven. So evening को ready होके we went वॉकिंग, बिकॉज नीचे ही बीच है एंड आसपास में बहुत कुछ है टू एक्सप्लोर द नाइट लाइफ. ये ऑटो राइड तो बहुत ही मस्त है. यू कैन लाइक हॉप ऑन एंड द फीस आर वेरी लेस, लाइक 20 बाट पर पर्सन. इस बार मैंने थाईलैंड से ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया, मोस्टली बिकॉज आई एम टोटली बोर्ड of shopping too much and not wearing them. Every girl has that one complaint, like you never wear your dresses enough. Like एक ड्रेस कितने बार we can repeat, we are just girls, like तो ये मतलब बहुत बार कर चुकी हूँ. कितना और शॉपिंग करूँ. फिर कुछ महीने बाद ऐसे फील होता है कि आई शुड गो एंड शॉप मोर, लाइक या तो ऑनलाइन ख़रीद लेती हूँ या कुछ भी. सो the nightlife is very vibrant, whether be it Pattaya walking street or Phuket walking street. Phuket is a bit cleaner than Pattaya. So let me know what you feel about it in the comment section below. So this roti was made by this Malaysian woman. She sells amazing rotis and it sells like hotcakes. And there's always a bheer, like crowd over there, even late into the night. And ये condensed milk दे के you can have it. You can have it with eggs, and I'm not sure if there are meat options available.
आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हम लोगों ने देखा। इस बार एक गलती हो गई कि वी डिड नॉट गूगल इनफ। हम लोगों ने सोचा कि रास्ते में ही सब कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा, बट अगर आप लोग थाईलैंड में हो, एंड आई मस्ट से दैट यू मस्ट गूगल बिकॉज देयर आर द मोस्ट अमेजिंग कैफ़ेज़ लाइक दिस वन। यहाँ पे सर्फिंग हो रहा है एंड यू कैन लाइक ट्राई इट, लाइक people who are non-surfers can also try it for a fee. ये एक जापानीज रेस्टोरेंट था, बट यहाँ पे हर कुछ सब कुछ नॉन वेजिटेरियन है, सो वी डिड नॉट चूज टू हैव डिनर हियर, बट इट लुक्स फैंसी। हाँ, सुशी एंड ऑल। मुझे वैसे तो सुशी नहीं पसंद, मे बी बिकॉज आई एम वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन सुशी इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट देर वॉज दिस बीच रेस्टोरेंट विच हैड लॉट ऑफ पिज्ज़ा, पास्ता, conventional Italian food options. So I'm happy with that. I love cheese. Can't help it. So this is the next day. We stayed in Phuket for like 3 to 4 days. Now we are going via a boat to Koh Lanta. It is a secluded part of Thailand, but not actually. You can't say that it's secluded because it's so well connected. And वहाँ पे मैंने देखा कि there are 7-Elevens available there also, so you can get your basic amenities like food, water and snacks at every 7-Eleven. So and khana bhi you can, like, just chal ke hi you can order. I'll show you. Phuket se almost 1 hour away via a boat, which takes about like 700 baht to 1000 baht for the boat itself with your luggage. You can go to Koh Lanta, KOHLANTA. Just Google it, okay? And the water is so blue, ये कोई फिल्टर नहीं है. एंड वहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत एयरबीएनबी बुक किया था, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. सॉरी, आई एम लाइक स्पीचलेस. इट्स सो स्पेशियस. इंडिया में यहाँ पे मुझे इतना पता नहीं, मे बी बिकॉज आई हैव नॉट ट्रैवल्ड दैट मच इन इंडिया, विच इज़ वाई आई ऑलवेज लाइक कमिंग बैक टू थाईलैंड, बिकॉज कोलकाता से बहुत ही पास है. एंड सी, इट इज़ सो लैविश लुकिंग. प्राइस सुन के आप चौंक जाओगे बिकॉज आई थिंक इट्स 10 to 15K पर नाइट for like per room, and I think we got it for a steal. So we always look up for offers and everything. See, it has bed and breakfast also. वहाँ पे एक lady, every morning she would come at 9-9:30 in the morning, and she would make us all our favorite breakfast of food, fruits, waffles, pancakes and all. TV तो है, but TV कभी चला के नहीं देखा because we used to spend so much time inside the pool and sitting by the pool and listening to music. We stayed here for like 2 to 3 days. It's a 2-story building, and it is reminiscent of the villa we stayed in Andaman, Havelock Island, Neil Island, way back in 2018. नीचे यूल सी गार्डन के साथ ही कोई फिश है. यहाँ पे दे थिंक कोई फिश इज़ वेरी ऑस्पिशियस, एंड द लेडी हु वुड कम टू कुक would always feed them in the early morning, and they are so cute looking. लास्ट टाइम भी मैं जब गई थी थाईलैंड, तब भी मैंने देखा था कुछ एक फैंसी होटल में. एवरीथिंग इज सो फैंसी स्मैंसी हियर. सी, दिस इज़ आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्प्रेड. एग्स जो है वो मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए हैं. आई चोज टू ईट ओनली फ्रूट जूसेस, पैनकेक्स एंड स्नैक्स. बाहर जाके ही इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बट दे क्लोज बाय 10 PM. बट यू कैन ऑलवेज वॉक, ओके, बिकॉज द रोड्स आर वेरी वेल कनेक्टेड. एंड थोड़ा आगे चल के ही जेम्स बॉन्ड आइलैंड है. वहाँ पे मैं नहीं गई बिकॉज आई यूज टू, मतलब लाइक टू चिल. आई लाइक टू चिल. मैं वेकेशन में ना, एक छोटा 10 day के ट्रिप में आई कैन नॉट गो वन प्लेस टू अनदर. वॉट काइंड ऑफ अ ट्रैवलर आर यू? Let me know in the comment section below.
since all these islands are obviously near the sea, you will get a lot of fish options in every restaurant that you go. And ये एक वियतनामीज रेस्टोरेंट है. ऐसे बहुत सारे थैच्ड रूफ वाले रेस्टोरेंट्स है where you can order food just मेरे एयरबीएनबी से निकल के ही रोड में ही है ऐसे. एंड वी सॉ एवरीबडी टेकिंग थाई मसाजेस आउट इन द ओपन. इट्स अ सनी वेदर, नॉट rainy at all, not too cloudy and neither too hot, so it's bearable. In the vegetarian menu you can see so many options, that too for a steal, like 120 baht, 100 baht, 110 baht. Even there are so many freshwater fish options. I don't even know their names, which is why I recorded a video. The place is very quiet, which is good because Phuket, Pattaya is full of like nightlife. Here you will see a lot of foreigners relaxing just by the beach, and you can take a jetty ferry to James Bond Island also, which is also I guess 1 hour away, and it charges about 1,000 baht maximum for the whole ferry. यहाँ पे you can see there are like Thai massages everywhere for I think as low as 200 baht full body massage, 450 baht, 400 baht foot massage for like half an hour. अगर आप लोगे तो 200 baht वो लोग charge करेंगे. So we came back to the restaurant to pick up our order. उसके पहले हम लोग बाहर थोड़ा टहलने गए थे, देखने गए थे कि है क्या वहाँ पे. मोटर बाइक्स you can take for rent, and if you feel like exploring you can, but I choose to chill. लाइक जल्दी जल्दी खाना मिल जाए बस. एंड मैं फिर एयरबीएनबी में जाके अच्छा सा म्यूज़िक चला के पूल के पास बैठ के चिल करूँ. तो दिस इज़ द फूड दैट वी आर टॉकिंग ऑफ. इट वॉज सो गुड. इट वॉज लाइक वेजिटेरियन प्रोटीन. ये मैंने ग्रीस में भी मैंने देखा था, बट ग्रीस में अलग टाइप का वेज प्रोटीन मिलता है. इट्स सोया ओनली. दिस इज़ फ्लेवर्ड सोया with a bit of lemongrass hints. Lemongrass is a very staple ingredient in most Thai dishes. Like first one being like Thai green curry. I'm sure all of you love it. But हर जगह Thai green curry अच्छा नहीं बना पाते. जैसे कि मैंने इस बार फुकेट में ट्राई किया था. It was not that tasty. The blend of the spices were not that good, and it was unnecessarily extra spicy. मतलब कुछ टेस्ट होना चाहिए यार, ब्लेंडिंग अच्छे से होना चाहिए. एंड उसमें आप वेजिटेबल्स जो दो उसका मिक्स भी अच्छा होना चाहिए. एंड मेरे लिए पता नहीं क्यों देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ फ्लेवर. आई गेस इट्स द सेम विथ एवरी वन. ज़्यादा स्पाइसी करने से
या नमक कम देने से ऐसा थोड़ी हो जाता है कि बहुत अच्छा खाना बन जाएगा। कोई ना, गुड एंड बैड फूड चॉइसेस तो रहेंगे ही। उसके बाद पूल में गए एंड इट्स द सेम, आई चोज टू स्टे एट द एयरबीएनबी बिकॉज इट्स सो क्वाइट एंड पीसफुल एंड बाहर कुछ खास है नहीं एक्सप्लोर करने को। ऑल्सो दिस इज़ माई 10th टाइम इन थाईलैंड, सो या you can understand my reasons for not going out as often. This is Bangkok ka luxury suite which we got for only 11,000 Indian rupees per night. I mean, like, it's amazing. I wish we could prolong our stay in Bangkok also. I love the city life of Bangkok and all the interesting cafes and shopping, everything we can do in Bangkok. Great for girls and guys as well. You know why. अगर आप मेरा स्नैपचैट फॉलो करते हो तो यू कैन सी दैट यू विल नो दैट आई हैव अपलोडेड सो मेनी ऑफ माई स्नैप्स फ्रॉम बैंकॉक एंड थाईलैंड ट्रिप ऑन माई स्नैपचैट, राइट? एंड उसको ही मैं अटैच करके व्लॉग बना रही हूँ. बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट 7-Eleven इज़ द कप नूडल्स, because you are vegetarian and if you are bored and you want a nice snack, तो रूम में ही you can, like, you know, heat water and have your vegetarian cup noodles, and that's it. I tried some of the pastries in 7-Eleven. एक पेस्ट्री मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो है कोकोनट जेली पेस्ट्री. कभी ट्राई मत करना कोकोनट जेली पेस्ट्री. आई एम श्योर you will not like the taste. Otherwise, all the other chocolate pastries, strawberry pastries are so pretty looking, plus they are so tasty. एक और चीज़ है, नेस्कैफ़े गोल्ड तो वहाँ पे बहुत easily मिलता है and that's the only brand of coffee I stick to. So मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होता. I never carry Nescafe Gold with me whenever I'm traveling to Thailand. एज़ यूजल मैं हमेशा जब बैंकॉक में रहती हूँ आई स्टे इन सोय 11. सोय 11 इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रीट. वहाँ पे कोई भी होटल है, बहुत स्टैंडर्ड है, एंड इफ़ यू लाइक पार्टी लाइफ यू मस्ट स्टे इन सोय 11 इन बैंकॉक. ये एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, 100% वीगन. यहाँ पे मैं बार बार आ चुकी हूँ एंड अगर आप मेरे इंस्टा पोस्ट या स्नैपचैट स्टोरीज़ देखोगे कि तो मैं जब भी आई हूँ 2023 में हो, 2022 में हो या 2024 में हो, मैं यहाँ पे वीगन फूड खा के ही जाऊँगी. ओके, सो सिंस देयर वर अदर यंग फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, वहाँ से बैंकॉक में ही बहुत सारे खास अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द अम्यूज़मेंट पार्क. ये कुछ नया किए हम लोग इस बार, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक शॉपिंग, ओके, माइंडलेस शॉपिंग. तो ये अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत सारे राइड्स है बट कुछ कुछ बंद थे. तो जो भी है, आई एम नॉट अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, बट मेरे को ज़बरदस्ती सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में हर एक एडवेंचर राइड को ट्राई करने को बोला गया था ना, मैंने किया, बट मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता इसमें. मतलब आई स्टे अवे फ्रॉम लाइक ऑल दिस एडवेंचर राइड्स. व्हाट डू यू थिंक? मैं अंदर गई एक ही कंडीशन पे ये एडवेंचर पार्क के, मुझे नहीं बोला जाएगा एडवेंचरस राइड्स ट्राई करने को, बिकॉज सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में इतने सारे एडवेंचर राइड्स ट्राई करके, और अबू धाबी में, मतलब आई फील वेरी स्कैर्ड अभी भी. मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, बट फिर भी एक दो राइड्स मैंने ट्राई किए. एंड यहाँ पे एक मेला जैसा था, वहाँ पे यू कैन गेट अ लॉट ऑफ लाइक यू नो कॉर्न डॉग्स, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एंड एंट्री फ़ी पे करके वी जस्ट वेंट इनसाइड. हमेशा खाना देख के मुझे भूख लगता ही है. आई लव फूड, सो आई कांट हेल्प इट. ये अबू धाबी वाला जो एडवेंचर पार्क है उसका नाम भी मैं भूल गई, सोचो. वो यस आइलैंड में फैंसी वाला, अभी तो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, उससे बहुत ही छोटा है बट देखने में खूबसूरत है. इसको बोल सकते हो थाईलैंड का निको पार्क. जैसे कोलकाता में निको पार्क है वैसे टाइप का. ये देख के डर लग रहा था बट थैंकफुली आई डिडंट गो ऑन इट. ये जो फैंसी
गोल गोल घुमाते हैं, फिर उसके बाद मेरा मतलब दिमाग हिल जाता है पूरा। मैं फ़ोटो वीडियो ले तो रही हूँ, बट अंदर से थोड़ा डर भी रही हूँ कि ये लोग मेरे को ज़बरदस्ती लेके ना जाए इसमें। एक बार तो मेरे को ट्रिक करके लेके भी गए थे, कुछ एक सॉसर वाला होता है उसमें भी। मैं इतना गुस्सा की उसके बाद, अरे यार मेरे को अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने आप में छोड़ दो, मैं ऐसे खाते पीते ही अच्छी हूँ, तुम लोग जाओ एन्जॉय करो, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो बैंकॉक में फिर से रेन्स आपको मिलेंगे अगर आप अप्रैल टू मई में जाओगे। तो ये है एक फूड कोर्ट टाइप का जो 5 बजे तक, इवनिंग 5 बजे तक ही खुला रहता है। उसके बाद इतनी ज़ोर से बारिश शुरू हो गई थी, क्या बताऊँ। बट यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ एंड लाइक वेजिटेरियन ऑप्शंस में बहुत कुछ है। एंड फैंटा यहाँ पे ब्लैक करंट फ्लेवर का है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने ट्राई किया, अच्छा है यार। एंड दे डोंट चार्ज इनफ, मतलब दे डोंट चार्ज एक्स्ट्रा। जैसे कि आप बाहर लाइक थाईलैंड के बाहर जाओ टूवर्ड्स मिडल ईस्ट ऑल्सो, everything in the adventure park is like very expensive. Yas Island is very expensive in Abu Dhabi. What do you think? यहाँ पे ये सब गेम्स भी हम लोगों ने ट्राई किया, बट बकवास, नो लक। बहुत लाइक टैक्टफुली खेलना पड़ता है। मुझे लगता है ये जो हुक है ना, ये लोग जानबूझ के लूज़ रखते हैं ताकि हम लोग जीत ना पाए, वरना टारगेट तो सही था। ये अम्यूज़मेंट पार्क जो है ना बैंकॉक में, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो बाहर यू कैन गो टू द मेला एंड हैव योर फूड। सो मुझे कॉर्न डॉग देख के बहुत ऐसे लालच हो रहा था, आई वॉन्टेड टू ट्राई इट। सो आई जस्ट ट्राइड द चीज़ एंड आलू वाला कॉर्न डॉग। इट्स सो टेस्टी मैन, इट्स वेरी 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 यमी। एंड एक तो मैं खुद ही खा जाऊँ। उसके बाद एक कैफ़े में गए थे, मतलब दे सर्व ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड। ये क्या बात हुई, मैं कुछ नहीं खाई उसके बाद, मुझे क्या पता था। थैंकफुली मैंने अभी कॉर्न डॉग खा लिया, उसके बाद तो नॉन वेज ही नॉन वेज, ऑल फिश एंड मीट। बट द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कैफ़े इज़ दैट गाइज डांस फॉर यू, सो इट इज़ अ मेजर अट्रैक्शन फॉर ऑल द लेडीज़। क्योंकि थाईलैंड में आप लोगों को ज़्यादातर ऐसे वॉकिंग स्ट्रीट पटाया में या फुकेट में यू गेट लाइक women entertaining guys. यहाँ पे men and boys were entertaining. It's actually fun to watch. Everybody was taking pictures with them also. This is totally new. ये सब वेजिटेरियन नहीं खाते, ये सब नॉन वेजिटेरियन ही खा रहे थे। बट they said that the fish was very good and the food was great for the price. थोड़ा शैबी रेस्टोरेंट है दिखने में, बट इट इज़ ऑलवेज पैक्ड। माई गॉड, यहाँ पे भी एक अंदर फ्ली मार्केट है, वहाँ से मैंने 1-2 शर्ट्स ही खरीदे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच फॉर अ चेंज गाइज एंटरटेनिंग गर्ल्स. व्हाट डू यू थिंक?
since it was the last night in Bangkok, because next to next morning we would leave for Kolkata again, we decided not to sleep because एक भी दिन हम लोगों ने मतलब पार्टी ही नहीं किया. ट्रैवल करते करते यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ट्रैवल करते करते थक गए एंड जेट लैग भी हो गए थे. सो वी थॉट कि आज चलो एक रात के लिए हम लोग बाहर ही स्पेंड करेंगे टाइम, कि देखते हैं क्या होगा, फिर तो घर आके सोना ही है. तो इसके बाद जल्दी जल्दी ग्रैब करके, ग्रैब इज़ लाइक ऊबर ओला ऐप ऑफ थाईलैंड, वहाँ पे आप फूड भी मंगवा सकते हो ग्रैब ऐप से, GRAB. तो वी वेंट बैक टू द होटल and got dressed up so that we could explore all the nice party life of Soi 11 Bangkok. Bangkok nightlife actually needs no introduction. अगर आप गूगल कर लो hippiest places to party in the world, Bangkok का नाम उसमें आना ही है. तो you will never get bored because all the clubs on, like, you know, offer live music, good food and drinks for a steal, and they remain open till 3 to 4. उसके बाद भी अगर आपको पार्टी करने का मन हो तो भी उसके बाद के लिए जगह है एंड इट इज़ अ प्लेंटी. बैंकॉक में इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स बहुत है एंड वी ट्राइड अमेजिंग इंडियन फूड एवरीवेयर. सी द नाइट व्यू फ्रॉम द होटल इन बैंकॉक. एंड उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गई एंड so ends my vlog. Bye, take care.